Today, the topic of my talk is genetic transformation of groundnut for enhanced salt stress tolerance. So, before going to start, first questions come: what are the stresses? Since all are you student and might be all of you now facing lot of stresses, uh, the Sir, as per current life. participants are a student as well as research scholar and some faculty also. Yes, sir. So I am not talking about that stress. Now question come: what plant feels different type of stresses during their life cycles? So plants facing two type of stresses: biotic and abiotic. Coming to the abiotic stresses, as I told, plant faces lot of abiotic stress like wind, extreme temperature, sometime low or high, then drought conditions, sometime flood, natural disaster, and most important salinity. So, soil which contain EC more than 4 decisimon are considered as the saline soil, which is equivalent to 40 millimolar NaCl. So, if we see the scenario of abiotic stress in the case of Indian scenario, then total Indian geographical area is around You have 320. you have raised hand by mistake or you wish to ask question? Okay. Oh, I- sorry, sir, it was by mistake. Okay, okay. Okay, no issue. So total geographical area is around 328 million hectare around, out of which Indian agriculture area is 178 million hectare. And in India, total saline area is 6.7 million hectare. If we are see the scenario of Gujarat, so out of 19.6 total geographical area, 9.8 million hectare is agriculture, out of which 2.23 million hectare is saline. So in Gujarat state, around 2 million hectare is saline area, and in India, around 6.7, nearly 7 million hectare is saline area. So salinity is one of the major problem. And if we see the peanut production, India ranked first in the terms of cultivation, but it is the second largest producer. तो कल्टीवेशन एरिया तो में तो वन है, लेकिन जब प्रोडक्शन की बात आती है तो सेकंड है. तो कल्टीवेशन एरिया इन इंडिया इज 5.4 million hectare and total animal production is 10.1 million ton with a productivity of 1863 kg per hectare. ये डेटा 2021-22 का है. If we see the China is number one in the peanut production, though it has minimum cultivation area than India, but produce more, and its productivity increase 4%. While in the case of India in 22 to 23, around 17% production was decreased. While the third large producer in worldwide is Nigeria, there is also there is the increase of 6.4%. So now coming to seeing in the perspective of scientists, what will be the major constraint? So we've observed that stress, pest, and disease. These three are the major constraint for the productivity, not for the peanut, but for any plant. There is the three major constraints. So how we can overcome this problem? So there is the two approach: transgenic and non-transgenic. So अगर हम नॉन ट्रांसजेनिक की बात करेंगे तो वी कैन यूज दिस वन biological controls, or we use fertilizers and other things. But if coming to the transgenic part, so there is the option transfer a abiotic stress tolerance gene from our one plant to the peanut plant. So for this approach, I have selected Salicornia brachiata as a resource plant, Salicornia brachiata as a resource plant, then PAPX and SR as a resource gene, while non-transgenic plant can grow up to 40 millimolar. But we observed that transgenic plant can grow up to 150 millimolar. Currently, we are in T2 generation stage. और अभी जो करंट स्टेटस ये है कि all transgenic plant are stored in containment area. As per government policy, we cannot go the field trial up till we didn't get approval from government. So we are waiting for the government approval till we will get the government approval. Our T2 generation plants, our seeds, they are stored in
suitable conditions. So before going to next aspect, might be all of you are aware about the central dogma. So any student can say what are the central dogma, what is the central dogma. कोई भी स्टूडेंट बोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो फिर मैं नाम लेके बोलूंगा. Any student, आप लोगों ने पढ़ा होगा. Yes, sir. DNA to RNA. Then Yes, sir. protein. It is a genetic information that flow from DNA to Huh? RNA to protein. Sir, it is Okay, and what about from one generation to another generation, DNA to DNA? Replication. Replication. So Hereditary. replication, transcription and translation, these combined we can say the central dogma. तो अब क्वेश्चन आता है कि which sorry हाँ, and from DNA to transformation, this information goes to mRNA, from then mRNA goes to protein, there is translation, and expression of this protein regulate the trait. So we can say a trait is regulated by a DNA or by a gene. तो हम अपना ट्रांसजेनिक अप्रोच के लिए कौन सा जेनेटिक मटेरियल या कौन सा बायोमैक्रोमोलिक्यूल सुटेबल रहेगा. अगर हम प्रोटीन को टारगेट करते हैं तो नो डाउट वी विल गेट द इमीडिएट इफेक्ट, लेकिन प्रोटीन के साथ प्रॉब्लम ये है कि मॉडिफिकेशन इज प्रोटीन इज वेरी डिफिकल्ट. इफ वी टारगेट आरएनए दैट इज मोर डिफिकल्ट. सो वी आर टारगेटिंग डीएनए, और डीएनए को टारगेट करने का एक फायदा ये है कि डीएनए इज आल्सो इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन. तो जो भी हम मॉडिफिकेशन डीएनए में करेंगे दैट गोज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. दैट्स व्हाई all this genetic manipulation, everything we are performing in at DNA level. So next question is the what is the transgenic plants. So transgenic is the integration of gene, और जो different aspect involve होते हैं transgenic development. First is the gene cloning. हम एक पर्टिकुलर जीन को एक प्लांट से या कहीं से भी लेते हैं, इसको क्लोन करते हैं, क्लोन करके इसको करेक्टराइज करते हैं. देन जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, उसको हम एक बाइनरी वेक्टर में क्लोन करके उसको सुटेबल मेथड से उस प्लांट में हम ट्रांसफॉर्म करते हैं. देन सिलेक्शन एंड रीजनरेशन, हम ट्रांसजेनिक प्लांट जो बना है उसको सिलेक्ट करते हैं ट्रांसजेनिक और नॉन ट्रांसजेनिक में. देन वी विल गो फॉर द रीजनरेशन, देन डेवलप द एंटायर प्लांट. देन confirmation, we will confirm whether this plant is transgenic or not. Then we perform the inheritance study. That means this information or this gene which we introduce in a plant, it is going from one generation to another generation or not. That comes in the inheritance studies. ट्रांसजेनिक प्लांट को लोग जीएमओ भी बोलते हैं, जीईओ भी बोलते हैं. जीएमओ मोस्टली बहुत कॉमन न्यूज़पेपर में और उसमें यूज होता है, आप लोग देखते होंगे जीएमओ क्रॉप, ऑल दीज थिंग. जेनेटिक जेनिक ऑर्गेनिज्म ये जनरली जो है इंडस्ट्रियल में यूज होता है, ये बैक्टीरिया ईस्ट या इन सब में लोअर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यूज करते हैं, और साइंटिफिक टर्म में हम लोग ट्रांसजेनिक या जीएमओ क्रॉप भी बोलते हैं. So the methodology which I adopted for this entire research work is Salicornia brachyata, my resource plant. We isolated genes and promoters. तो क्वेश्चन आता है कि हमने प्रमोटर क्यों आइसोलेट किया. कोई स्टूडेंट गेस कर सकता है कि why we isolate promoter also? Any student? so it might be having greater promoting capabilities, maybe. Okay, yeah, that is the one of the reason. So okay, then we isolate gene and promoter, then उसका functionally characterize किया. After functional characterization, we confirm that the gene which we have isolated, it is showing a particular characteristic or not. If it is showing functional characteristic and promoter is also efficient, then we go for the vector construction. तो आप लोगों को पता है वेक्टर कई टाइप के होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर, सीक्वेंसिंग वेक्टर, मैं तो ये मोटा मोटी बोल रहा हूँ. एंड देन बाइनरी वेक्टर. तो इस केस में हम लोग बाइनरी वेक्टर यूज करते हैं, और बाइनरी वेक्टर में क्लोनिंग करने के बाद उसको हम यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में. साइड बाय साइड वी हैव आल्सो डेवलप्ड इन विट्रो दिस वन tissue culture method, क्योंकि after transformation we have to perform the tissue culture. So this vector is transformed to the groundnut. Then we selected a transgenic plant. तो इस स्टेज पे हम लोग उसको बोलते हैं putative transgenic plant, क्योंकि we have not yet confirmed that these are transgenic or not. These are the putative transgenic plant. Then we did the confirmation and then analyze different biological and physiological analysis.
तो इस केस में जब कंफर्म हो जाता है तो वो हो गए ट्रांसजेनिक प्लांट, देन वी परफॉर्म द फील्ड ट्रायल्स और फिर उसका हम देखते हैं इम्पैक्ट असेसमेंट। क्योंकि अगर हमने कोई भी जीन ट्रांसफॉर्म किया है या कोई भी प्रमोटर ट्रांसफॉर्म किया है तो इसका सराउंडिंग पे क्या इम्पैक्ट है, क्या ये जीन क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टली कहते हैं उसको क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टली फैल तो नहीं रहा है या किसी और प्लांट को इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, तो इम्पैक्ट असेसमेंट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द ट्रांसजेनिक प्लांट एनालिसिस। तो अब हाँ, यहाँ तक की स्टडी हम लोगों ने कर ली है, इसको लैब स्केल पर। फील्ड ट्रायल के लिए और आगे की स्टडी के लिए हमको जो है गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। सो वी रिक्वायर्ड अ गवर्नमेंट परमिशन फॉर फील्ड ट्रायल एंड followed by the impact assessment. So as when we will get the government approval, we perform the field trial. However, in greenhouse condition, we perform the field trial at the pot level, but that is not sufficient in the broader aspects. Sir, how long did it took you to like go with every cloning part and all and today? vector development? No. How long it took you? एक्चुअली ये टोटली डिपेंड करता है कि आप जीन कौन सा ले रहे हैं। आप जैसे किसी स्टूडेंट का हाथ अच्छा होता है, उसके 1 या 2 स्टैंड में जीन आ गए और उसने 1 या 2 बार में क्लोन कर लिया और उसको जो है सिक्वेंसिंग भी कर लिया, करेक्टाइज भी कर लिया, उसकी किस्मत बहुत अच्छी रही, करेक्टाइजेशन में उसको जो है जीन का फंक्शन पता चल गया, तो वो जो है क्लोनिंग से लेकर के करेक्टाइजेशन जो है 6 महीने से करीब 1 साल के आसपास लगता है। अगर स्टूडेंट की किस्मत थोड़ी अच्छी नहीं रही तो वो 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है फुली जीन करेक्टाइजेशन में। मेरे केस में एक स्टूडेंट ने जीन करेक्टाइजेशन 1 साल में किया और एक स्टूडेंट 3 साल लगा रहा, जीन करेक्टाइज नहीं हुआ, उसने अपना काम चेंज किया। तो ये टोटल डिपेंड करता है आप जीन किस टाइप का ले रहे हो, उसको करेक्टाइज कैसे कर रहे हो। इवन कुछ स्टूडेंट ने तो 2 या 3 जीन स्टार्ट किया और एक ही जीन क्लोन कर पाए, बाकी जीन उन्होंने छोड़ दिया, वो उनसे हो नहीं पाया। तो ये टोटली डिपेंड कि आप वी कैन से इट इज योर लक कि आपको ये अच्छा जीन मिल जाए और आप एक बार में उसको जो है क्लोन करके करेक्टाइज कर ले। तो Okay, so अगर it आप takes lot of time and effort, I guess. हाँ, और ट्रांसजेनिक बनाने में 3 से 4 साल आराम से जाते हैं। एक पीएचडी थीसिस हो जाती है एक ट्रांसजेनिक में। My God. पीएचडी थीसिस 3 साल नहीं, लगभग 4 से 5 साल मान के चलें। फील्ड ट्रायल फिर भी नहीं हो पाता। सर इसको आउटसोर्स कर सकते हैं हम लोग, मतलब अगर आप बाहर दे दो। आउटसोर्स कर अगर हम आउटसोर्स करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम रहेगी पेटेंटेबिलिटी और आपका आईपी इशू आएगा, क्योंकि किसी भी आप इंडस्ट्री को दे रहे हो तो एक तरीके से जीन आपके हाथ से चला जा रहा है और वो इंडस्ट्री आपका एक फुली फंक्शनल जीन है जो आपको अच्छी तरह से करेक्टाइज है। उस इंडस्ट्री उस जीन को पता चला, आप गवर्नमेंट में हो, आप जब तक उसका आईपी क्लेम कर रहे हो तब तक इंडस्ट्री वाले उसका आईपी क्लेम करके और इसको रिलीज कर देंगे, फिर आप यू विल बी नो हेयर। तो आईपी इशू एक बहुत बड़ा है। अब पहली चीज, और दूसरी चीज जो है इंडस्ट्री इतना एफर्ट नहीं लगाएगी, ना इतना टाइम लगाएगी। अगर आप उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च दोगे तो इतना ज्यादा पैसे का डिमांड करेंगे कि यू कैन नॉट फुलफिल। ओके, और सर खुद करने जाओ तो कितने चार्ज मतलब आपकी स्पेंड होता है? करने जाए एक्चुअली दिस इज द गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट और गवर्नमेंट जो है करीब आपको 35 से 40 लाख देती है जीन करेक्टराइजेशन से लेकर के उसका फुली करेक्टराइजेशन के लिए। उसके बाद अगर आप उसको थोड़ा और लेके जाएंगे तो 50 से 60 लाख देती है, इंक्लूडिंग रिसर्च कॉस्ट एंड 1 स्टूडेंट फेलोशिप फॉर 5 ईयर। तो आपको जो है करीब 50 से 60 लाख देती है। अगर आप फील्ड ट्रायल में जा रहे हो तो उसमें डिपेंड करता है कि इसको गवर्नमेंट किस हिसाब से कर रही है। अगर गवर्नमेंट इसको म्यूचुअल कंसेंट से कर रही है तो कोई भी ICAR के इंस्टीट्यूट इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर देगा। अगर प्रोजेक्ट बेस्ड में कर रही है तो फिर डिपेंड करता है कि आप कितने लार्ज स्केल पे उसका फील्ड ट्रायल कर रहे हैं, तो सामने वाली एजेंसी उसी हिसाब से कोट करती है। पर गवर्नमेंट एक ट्रांसजेनिक प्रोजेक्ट में करीब 50 से 60 लाख इन्वेस्ट करती है अप टू लैब लेवल, अगर कोई प्रोजेक्ट लिखता है तो DST या DVT। सिंपल ट्रांसजेनिक की बात कर रहा हूँ। अगर आप कोई ऐसा क्रॉप लेते हो जो बहुत ही डिफिकल्ट है, उस केस में कास्ट बढ़ जाती है, पर गवर्नमेंट की फंडिंग जो है अराउंड 50 लाख रहती है, इंक्लूडिंग स्टूडेंट का 5 साल की सैलरी और केमिकल कंज्यूमर अदर्स फंड जो भी है। सो क्वेश्चन कम तो व्हाई वी हैव सिलेक्टेड सेलिकोर्निया।
एक्चुअली जब मैं यहाँ पर गुजरात में फर्स्ट टाइम आया, भावनगर आते समय, आई हैव सीन देयर इज लॉट ऑफ साल्ट मार्सेस, और वहां पर एक प्लांट जो है वो आराम से ग्रो हो रहा था, इट इज शोइंग वेरी ग्रीनरी। सो मैंने देखा दैट इज एक्सट्रीम हेलोफाइट, वो 50 मिलीमोलर साल्ट तक आराम से ग्रो कर रहा था वो प्लांट, एंड ही इज आल्सो एक्यूमुलेटिंग करीब अराउंड 30 to 40% इनिशियल इन ड्राई वेट। और मैंने लिटरेचर पढ़ा तो एंड लेटर ऑन आई आल्सो फाउंड दैट इट इज न्यूट्रिशनल, वेरी न्यूट्रिशनल, एंड सीड इज आल्सो कंटेनिंग रिच इन प्रोटीन। तो उस प्लांट वी हैव फाउंड दिस सैलिकोर्निया, और इस पर जो है वी हैव डन different aspect. We have studies gene, protein, saccharide, metabolites, and energy. We also found that it seeds having low MUFA and high SFA, so it is also potential resource of renewable energy. तो गांधीनगर में जो पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, they are working on this aspect for the energy sector. Also Israel is also working on the energy sector on this plant, दो वहां पर सेलिकोनिया ब्रैकियाटा नहीं होता है, जिसकी दूसरी स्पीसीज होती है। And we have studied the metabolite of the Seliconia brachyata, and found it contained 20 different metabolites with different bioactivity, and also having 20 to 27% linoleic acid and alpha linoleic acid. So we can say it is highly nutritious, though not in India, but in Europe, its tender shoot is also used as the green salad. So in protein, अभी बता रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ मैं। एंड वी आल्सो परफॉर्म यूजिंग मल्टी टास्क ऑफ अल्गोसैकराइड मास प्रोफाइलिंग। फिर हमने देखा इसमें अल्गोसैकराइड्स भी काफी होते हैं, एंड दैट इज शोइंग हाईली न्यूट्रिटिव सोयाबीन। इन द केस ऑफ प्रोटीन वी हैव परफॉर्म 2D एक्सपेरिमेंट विद दिस वन सीड, सेलिकोर्निया सीड, by 2D, then followed by the protein pickup and then protein characterization. So we found that there is lot of disulfide linked polypeptide, and this protein are sulfur rich. So again it is considered nutritional. हम लोगों ने सिर्फ इस पे 2D करके ये देखा है, मैंने, इसके अलावा मेरे कोलीग ने इनका टोटल प्रोटीन प्रोफाइल किया है, प्रोटीन एनालिसिस किया है। सो वी फाउंड देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स फाउंड इन that in green tender. That's why it is considered nutritious in European countries. Also nutritious in India, but you know in India it is not used in cuisines. So coming to the gene which I have worked, so we have performed the differential expression analysis. जब मैंने ये काम किया था that time NGS इतना वो नहीं था, so to know about the what type of different gene is there, so we performed the EST, we developed the EST sequence tag, and then we study which type of gene is there. Then we found around 30% genes belong to category unknown or hypothetical, and some important gene is found, like 4% involved in defense, 11% involved in RNA metabolism, in signaling sub. Around we have got 2000 ESTs, out of which 300 genes are unknown and hypothetical. Now question comes here, what is unknown gene or what hypothetical gene? माइक्रोफोन ऑन है मेरा, किसी ने लिखा है माइक्रोफोन, आई थिंक माइक्रोफोन ऑन है। हेलो? नहीं, कहाँ माइक्रोफोन आपका, कहाँ दूसरे कोई लिखे होंगे सर, इसमें कहाँ चैट पे? अरे इसमें चैट पे आया तो मुझे लगा मेरे लिए है। नहीं, ठीक है, तो कोई स्टूडेंट बताएगा कि व्हाट इज हाइपोथेटिकल और अननोन जीन? सर जिसके फंक्शन हमें पता नहीं हो या फिर हम प्रेडिक्ट कर सके। ओके, ये तो आपने नाम देख के बोल दिया। ठीक है, सो कमिंग टू द एनोटेशन, वी फाउंड नोन जीन। कोई भी जीन हम आइसोलेट करते हैं तो उसका हम सीक्वेंस जो है सीबीआई में मैच करते हैं, तो हम उसको प्रिडिक्टिव जीन बोलते हैं। जिस भी जीन को हमने आइसोलेट किया है, इफ इस जीन मैच विद द इंटायर लेंथ ऑफ नोन जीन, तो हम उसको बोलते हैं नोन जीन। अगर उसके कुछ पार्ट पर्टिकुलर जीन के कंजर्व पार्ट से मैच करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइक जीन और सिमिलर टू जीन। लाइक जैसे कोई जीन है NHX जीन, अगर 100% या 99% मैच कर रहा है तो वो नॉन जीन है, NHX जीन बोल दिया। पर अगर सपोज 80% या 90% या कुछ पार्ट मैच कर रहा है NHX से, पूरा मैच नहीं कर रहा है, तो हम बोल देते हैं इट इज सिमिलर टू NHX जीन और सिमिलर टू पर्टिकुलर जीन, तो दैट जीन का प्यूटिटिव जीन। अननोन जीन
these are gene which is matches with the NCBI database, लेकिन उसका फंक्शन नोन नहीं है, that called unknown gene. Coming to the hypothetical gene, उस केस में क्या होता है, उसका इंटायर सीक्वेंस ही नॉवेल है, यानी वो डेटाबेस में वो सीक्वेंस मैच करता ही नहीं, यानी कि वो सीक्वेंस एनसीबीआई में लेबल नहीं है, हम मैच नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे करेक्टराइज करते हैं, थोड़ा बहुत फंक्शन पता चलता है तो वो अननोन जीन बनता है, फिर उसको हम थोड़ा और करेक्टराइज करके पर्टिकुलर जीन से मैच दिखाते हैं तो वो लाइक और सिमिलर जीन बनता है, जिसको हम फुली फंक्शनली करेक्टराइज कर लेते हैं, उसके सारे एस्पेक्ट पता रहते हैं, दैट बिकम नोन जीन. तो हमारे केस में क्या है, हाइपोथेटिकल जीन मिला, नोन जीन भी मिला और अननोन जीन भी मिले और प्यूटेटिव जीन भी मिले. तो इनिशियल स्टेज के लिए तो भाई नोन जीन लेके काम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन इफ वी गो फॉर द आईपी एंड इफ वी गो फॉर द नॉवेल वर्क, देन वी हैव टू पिक अप सम हाइपोथेटिकल जीन, उसको हम करेक्टराइज करें और फुली फंक्शनली उसका फंक्शन देखें. पर उसमें जैसा कि एक स्टूडेंट ने बोला तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. अगर आप नोन जीन को लोगे तो आप 1 साल में लगभग क्लोनिंग, करेक्टराइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन कर लोगे. आप प्यूटेटिव या अननोन जीन लोगे तो आप 2 साल में कर लोगे. पर अगर आप हाइपोथेटिकल जीन पिकअप कर रहे हो तो आपको 4 से 5 साल लग जाएगा उस काम को करने में. ये टोटली डिपेंड करता है कि आप जीन कैसा ले रहे हैं. होपफुली जिसको स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था उसको आंसर मिल गया होगा. सो अब अगला क्वेश्चन आता है कि हमको EST डेटाबेस मिला. एज यू नो EST डेटाबेस जो है 200 से 250 मैक्सिमम 400 बेस पेयर का होता है, एंड यू डोंट नो कि आपका जीन कितना बड़ा है. सो क्वेश्चन आता है कि हम फुल जीन को कैसे आइसोलेट करें. मैं एक्चुअली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के हिसाब से प्रेजेंटेशन दूंगा. तो अब हमारे पास 300 से 600 बेस पेयर का सीक्वेंस है. अब हमको फुल लेंथ जीन निकालना है, तो उसके लिए टेक्निक होती है रैपिड एम्प्लीफिकेशन ऑफ cDNA इंड. 5 प्राइम रेस और 3 प्राइम रेस, जैसा नाम है, अगर हम 5 प्राइम की ओर बढ़ेंगे तो 5 प्राइम रेस कहलाएगा और 3 प्राइम की ओर जाएंगे तो 3 प्राइम रेस कहलाएगा. तो हम इस केस में क्या करते हैं कि वी हैव आइसोलेटेड mRNA फ्रॉम आवर प्लांट. एज यू नो mRNA में जो है पॉली ए टेल होती है और mRNA है, उसमें हम mRNA से हम फर्स्ट स्ट्रैंड cDNA बनाते हैं. जिस जीन को हमको फुल लेंथ करना है उसका थोड़ा बहुत सीक्वेंस पता ही हमको EST डेटाबेस से पता ही है. तो EST डेटाबेस से हम जो है जीन स्पेसिफिक रिवर्स प्राइमर डिजाइन करके उसका हम फर्स्ट स्ट्रैंड cDNA बना लेते हैं. ठीक, फर्स्ट स्ट्रैंड cDNA बनाने के बाद उसके हम आगे पॉली ए टेल लगा देते हैं. अब इस केस में हमको पॉली ए टेल पता है 5 प्राइम पे है और 3 प्राइम पे हमको पता है कि जीन स्पेसिफिक प्राइमर है. अगले केस में हम क्या करेंगे, जो जीन स्पेसिफिक के उसके साइड का दूसरा प्राइमर लेंगे GSP1. पहले हम GSP-RT प्राइमर यूज किए थे, GSP1 पहला प्राइमर यूज करेंगे और पॉली ए लगा है तो हम इधर पॉली टेल यूज करके हम उसका जो है फर्स्ट सेट एम्प्लीफिकेशन करेंगे. फिर सेकंड सेट में हम GSP2 यानी GSP1 के बगल का सीक्वेंस लेकर के सेकंड प्राइमर यूज करेंगे और इधर हमको पॉली ए टेल के साथ हम एडाप्टर लगा रखे हैं तो हमको इसका भी सीक्वेंस पता है, इसको हम ऐसा फॉरवर्ड प्राइमर यूज करेंगे. और इस साइकिल को हम जब रिपीट करते जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल जो है 5 प्राइम का जीन के 5 प्राइम का पार्ट एम्पलीफाई हो जाएगा. देन वी गो फॉर द सीक्वेंसिंग करने के बाद हमको 5 प्राइम के जीन मिल गए तो हम इसी पूरे प्रोसेस को हम रिपीट करते रहेंगे. तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक हमको आगे सीक्वेंस मिलता रहेगा. तो अब क्वेश्चन आएगा कि पूरा जीन हमको मिल जाएगा. हम वी आर यूजिंग mRNA, तो हमको जो है इंटायर जीनोम नहीं मिलेगा. तो mRNA उस पर्टिकुलर जीन का mRNA का 5 प्राइम ऐसे हम उसको कर लेंगे जब तक हमको ATG नहीं मिल जाता. आप लोगों को पता है ATG द स्टार्ट कोडान. जब हमको ATG मिल गया, दैट मीन स्टार्ट कोडान मिल गया, तो स्टार्ट कोडान से थोड़ा 5 प्राइम की ओर और एम्पलीफाई कर लेते हैं UTR के लिए, 5 प्राइम UTR रीजन के लिए. तो ATG मिल गया तो हम 5 प्राइम का रेस बंद कर दिए. अब आता है 3 प्राइम. सेम टेक्निक हम यूज करेंगे 3 प्राइम रेस के लिए, लेकिन यहाँ पर हम अल्गो पॉली ए टेल होती है तो हम अल्गो DT से इसको अपना फर्स्ट स्ट्रैंड cDNA बनाएंगे और 5 प्राइम पे हमको अपना जीन का सीक्वेंस पता है तो हम उसका प्राइमर लेंगे और इधर पॉली ए टेल के साथ जो एडाप्टर लगा है उसका प्राइमर लेकर के सेम स्ट्रेटजी से हम एम्पलीफाई करेंगे.
इस तरीके से हमको जो है cDNA C3 प्राइम सीक्वेंस मिल जाएगा। 3 प्राइम रेस कहाँ कब तक करना है, ये बहुत इजी है। जब हमको पॉली ए टेल मिलनी शुरू हो जाएगी तो हमारा 3 प्राइम रेस कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो है स्टार्ट कोडॉन है और 3 प्राइम पर स्टॉप कोडॉन है, उसके बीच का सीक्वेंस हमने ले लिया, तो वी विल गेट द फुल लेंथ जीन। उसको हमने सीक्वेंस करा लिया। नाउ वी हैव द जीन फुली फंक्शनल फुली ट्रांसलेशन जीन, एटीजी भी है और स्टॉप कोडॉन भी है। तो कौन सा एटीजी स्टार्ट कोडॉन होगा उसमें? फर्स्ट तो नहीं होगा, हो सकता दूसरा तीसरा। इसमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स आता है। हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स करके देखते हैं कि तीनों फ्रेम में देखते हैं कि किस फ्रेम में हमको मैक्सिमम प्रोटीन मिल रहा है, नंबर 1। और नंबर दूसरा, हम जब उसको अगर नॉन जीन है तो हम एनसीबीआई से जाकर के देख लेते हैं कि उसका यूटीआर आ गया कि नहीं आ गया। 5 प्राइम पे यूटीआर रीजन मिल जाएगा, दैट मीन्स हमारा जो है 5 प्राइम कंप्लीट हो गया है। लेकिन यूटीआर कंजर्व होते हैं ना, यूटीआर कंजर्व होते हैं। यूटीआर कंजर्व जीन नहीं, हाँ, एटीजी के बाद वो अनट्रांसलेटेड होते हैं। बट इज इट कंजर्व? लिटिल बिट कंजर्व। ओके। नहीं तो फिर हमको टीएसएस भी मिल जाता है जहां पर ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होता है। ओके, हाँ, वो कंजर्व होता है। हाँ ना, दैट इज कंजर्व। हाँ, तो अगर हमको टीएसएस मिल गया, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट मिल गया, तो हम मान लेते हैं कि जीन हो गया। अदरवाइज अगर हमको सपोज नहीं मिल रहा है, ऐसा जीन है जैसे किसी स्टूडेंट ने बोला था हाइपोथेटिकल जीन है, हमको 5 प्राइम का हमको कुछ नहीं पता, तो हमको एटीजी मिला, हमको करीब 5 एटीजी मिले सपोज, तो हम 5 एटीजी से स्टॉप कोडॉन तो हमको पॉली ए टेल के पहले मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम उसमें देख लेते हैं कि किस एटीजी के तीनों फ्रेम में बायोइन्फॉर्मेटिक्स से देख लेते हैं किस एटीजी से स्टॉप कोडॉन के बीच में हमको सबसे बड़ा प्रोटीन मिल रहा है। अब सपोज एक एटीजी से हमको मिल रहा है करीब 100 बेस पेयर का अमीनो एसिड, एक से मिल रहा है 50, एक से मिल रहा है 80, तो 100 बेस पेयर प्रोटीन वाला हम पिक कर लेते हैं। एक स्ट्रेटजी ये है कि हम जो है तीनों पिक कर लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा इसमें प्रोटीन उस ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। ये अननोन और हाइपोथेटिकल के केस में होता है, तो हम जो है तीनों फ्रेम से हम डिजाइन करके जीन को आइसोलेट करते हैं। पर नोन के केस में हमको टीएसएस पता है, इसलिए हम जो है सिंगल फ्रेम में फुल लेंथ जीन आइसोलेट कर लेते हैं। बहुत क्लियर हो गया होगा? यस। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ये। तो अब हमारे पास जीन आ गया, अब इसको देखते हैं कि जीन दैट इज इन्वॉल्व इन स्ट्रेस और नॉट। उसके लिए हम रियल टाइम क्वांटिटेटिव पीसीआर परफॉर्म करते हैं। तो हमने जो है अपने डेटाबेस पे हमने पाया डिफरेंट नोन जीन लाइक एनएचएक्स दैट इज एंटीपोटर, टीएपीएक्स जीन है, एमटी2 दैट इज मेटलोथियान मेटल बाइंडिंग प्रोटीन है, एएसआर ये रैपनिंग जीन है, एंड जीएसटी इट इज आल्सो एंटीऑक्सीडेंट जीन। तो ये हमको डिफरेंट नोन जीन मिले। इसके अलावा हमको कई अननोन जीन मिले और नॉवेल जीन मिले, जिसका हम लोगों ने नाम रख दिया साल A1। ये नाम ऐसे रखा कि साल फॉर सेलिकोनिया, ए लाइब्रेरी बी लाइब्रेरी सी, क्योंकि हमने कई लाइब्रेरी बनाई, और फिर क्लोन नंबर। तो ऐसे करके जो है हम लोगों ने उसका नाम रखा और उसका डेटा, उसका सीक्वेंस एनसीबीआई में सबमिट कर दिया। सो वी हैव नोन जीन एज वेल एज डिफरेंट अननोन जीन। बाद में इन्हीं अननोन जीन को जब हम लोगों ने आगे करेक्टराइज किया तो उनका जब फंक्शन पता चलता गया, जिसको हम नोन जीन में कन्वर्ट कर दिए, जैसे कि कोरा कर दिया, ड्रॉट रिस्पॉन्सिव कर दिया, या शॉर्ट रिस्पॉन्सिव जीन कर दिया, एसएआर, ऐसे डिफरेंट उसका नेमिंग करके उसको नोन कर दिए। सो वी परफॉर्म द रियल टाइम क्वांटिटेटिव पीसीआर। तो उसमें हमको पता चला कि कौन कौन से जीन अप रेगुलेट हो रहे हैं और कौन कौन से जीन डाउन रेगुलेट हो रहे हैं, बिकॉज अप रेगुलेशन और डाउन रेगुलेशन बोथ आर इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रेस जब हमने दिया तो कई जीन जो है अप रेगुलेट हुए, उनका एक्सप्रेशन कई एक्सपोनेंशियल बढ़ गया, और कितने हुए जीन का एक्सप्रेशन गिर गया। तो फॉर द ट्रांसजेनिक एस्पेक्ट वी प्रिफर अप रेगुलेटेड जीन, क्योंकि एक मिनट, हाँ, वी प्रिफर अप रेगुलेटेड जीन, क्योंकि अप रेगुलेटेड जीन को आगे काम करना इसलिए आसान है कि बिकॉज इफ वी ओवर एक्सप्रेस दिस जीन तो डेफिनेटली वी विल गेट द फंक्शन और ट्रेट अप रेगुलेशन। लेकिन निगेटिव जीन के साथ काम करने में ये प्रॉब्लम है कि इफ निगेटिव जीन इज निगेटिवली इन्वॉल्व एबायोटिक स्ट्रेस, तो उसके लिए स्ट्रेटजी आती है जीन नॉकआउट, या फिर क्रिस्पर कैस आ गया है। तो वी आर यूजिंग दिस टेक्निक। हम उस जीन को अगर नॉकआउट कर देते हैं या उस जीन से एसोसिएटेड जीन को, तो वी कैन गेट द डिजायर्ड ट्रेट। सो
बट हियर इन माय केस आई प्रिफर द ओवर एक्सप्रेशन, क्योंकि थोड़ा इजी है, और जिस समय मैं काम स्टार्ट किया था उस समय नॉकआउट और क्रिस्पर कैस इतना आया भी नहीं था मार्केट में. सो वी परफॉर्म द functional, we validate the functional gene. So एक सेकेंड, हाँ. सो वी तो हम इसके फंक्शनल वैलिडेशन में 3 से 4 चीजें करते हैं. नंबर 1, इट इज लोकलाइजेशन स्टडी. तो उसके लिए एक वेक्टर आता है पी साइट वेक्टर. पी साइट वेक्टर में बी क्लोन अवर जीन इन एडजेसेंट टू द रेड फ्लोरेसेंट प्रोटीन. उसके साथ हम अपना जीन क्लोन कर देते हैं. देन वी ट्रांसफॉर्म द ओनियन पील. उसके बाद जो है अंडर फ्लोरेसेंट दैट माइक्रोस्कोप वी ऑब्जर्व वेयर आवर जीन इज दैट आरएफ इज एक्सप्रेस. तो उससे हमको पता चल जाता है कि जीन जो है साइटोप्लाज्म के एक्सप्रेशन दिखा रहा है, या फिर न्यूक्लियर एक्सप्रेशन दिखा रहा है, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सप्रेशन दिखा रहा है. बिकॉज आवर जीन ट्रांसक्राइब्ड एंड देन ट्रांसलेटेड. तो उसमें जो भी सिग्नल होते हैं, अगर सपोज न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है, देन दिस आरएफ जो रेड फ्लोरेसेंट प्रोटीन है दैट आल्सो गो विद दिस प्रोटीन टू न्यूक्लियस. अगर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिग्नल्स हैं तो उधर जाएगा, अदरवाइज तो साइटोप्लाज्म में रहेगा. तो बाय दिस भी ऑब्जर्व कि हमारा जीन का एक्सप्रेशन पैटर्न क्या है, कहाँ एक्सप्रेस हो रहा है. सेकेंड, हम उसका जो है, अगर वो सपोज न्यूक्लियर लोकलाइज है, तो हम अगला एक्सपेरिमेंट करते हैं मोबिलिटी शिफ्ट से, जिसमें हम न्यूक्लियर डीएनए और ट्रांसजेनिक प्लांट का जो डीएनए है, सपोज टबैको डीएनए जिसमें हम लोगों ने यूज किया निकोसियाना टबैको डीएनए, अपना प्लांट का डीएनए और जो जीन प्रोब है उसके साथ मिक्स करके हम इनसा एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है ये न्यूक्लियर बाइंडिंग है या नहीं है. वो आगे मैं डिटेल में बताऊंगा जब प्रोमोटर पे आऊंगा. फिर अगले एस्पेक्ट में वी मेक अ बाइनरी वेक्टर, दिस वन, जहां वी क्लोन अवर जीन in upstream to 35S promoter, that is constitutive promoter. Then we transform in model plant. Here I have used tobacco. और फिर इस मॉडल प्लांट पे ट्रांसफॉर्म करके बाय टिश्यू कल्चर वी रेज द T1 प्लांट, मतलब फर्स्ट जनरेशन का T0 सीड फर्स्ट जनरेशन के प्लांट, और अप टू सेकंड जनरेशन उसको ग्रो करा करके सेकंड जनरेशन का देखते हैं. तो वी स्टडी दिस ऑल प्लांट इन T1 एंड T2 जनरेशन. तो वी हैव परफॉर्म डिफरेंट स्टडीज, जैसे कि उसमें कितना ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, प्रोलीन उसमें कितना बन रहा है, टोटल शुगर कितना है, डिफरेंट एस्पेक्ट. लेकिन फील्ड कंडीशन में वी हैव सी कि वेदर इट कैन शो सैलिनिटी स्ट्रेस और नॉट. सो दिस इज द फाइनल images where it shows salinity up to 15 days in the respect of this wild type plant. Similarly, it is also showing drought tolerance, क्योंकि after 15 days when we re-irrigated, तो our transgenic plant that is regenerated, while transgenic wild type they are not. And we also studies कि हम salinity stress में they are completing their life cycle or not, क्योंकि जनरली जब स्ट्रेस आता है तो प्लांट जो है they end their life cycle. तो we have studies and we found कि plant completed their life cycle under stress condition. So in model plant we have characterized different gene with their function, and based on this function we discover or we found out the mode of action. तो मैं 3 यहाँ पर इमेज दिखा रहा हूँ. दिस इज द फंक्शनल वैलिडेशन ऑफ यूएसपी जीन. एक अननोन जीन था जो हमने उसको जब किया तो उसका हम लोगों ने नाम दिया यूनिवर्सल स्ट्रेस प्रोटीन. उसके साथ थोड़ा मैच दिखाया. सो वी हैव नेम इज यूनिवर्सल स्ट्रेस यूएसपी जीन. इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? It is showing salt and stress tolerance via signaling and by quenching ROS, reactive oxygen species. By this, it is showing cellular homeostasis and stress tolerance.
एक जीन हमको मिला था CLP, उसका नाम था, that is SRP gene. This is showing plasma membrane localization. So we detected it might be porter, either anti-porter or uniporter, and then is perceive the signals and then start secondary signaling molecules, either calcium or ABA dependent or independent. By these signaling molecules that regulate the shows the abiotic stress tolerance. और एक जीन हमको जो अननोन मिला था, उसका हमने जब इन्वेस्टिगेट किया तो वी हैव नेम्ड दिस जीन इज SDR. That is nuclear, it is nuclear localization. तो बाय डिफरेंट लोकलाइजेशन स्टडी, तो मैंने तीनों मॉडल लिए. वी हैव डिफरेंट जीन, लेकिन मैं यहाँ पे तीन ही मॉडल दिखा रहा हूँ बिकॉज ये 3 मोड ऑफ एक्शन है. एंड इन दिस केस दिस जीन make SDR protein which is goes to the nucleus, then activate different stress responsive gene, transcription factors and ROS scavenging genes. By this it provides the salt and dot tolerance. So by 3 different mechanism, this gene shows the drought and stress tolerance. So now we have fully functional gene known as well as hypothetical. तो अगला क्वेश्चन आता है कि आपने देखा होगा कि मैंने CMB35S प्रमोटर यूज किया जीन को एक्सप्रेस कराने में. CA35 इज अ इंडस्ट्रियल प्रमोटर, दैट इज द प्यूटिटिव प्रमोटर. हम उसको अपने ट्रांसजेनिक के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक तो IP का इशू है, दूसरा है उस केस में कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर. यू नो ना कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर, एनी स्टूडेंट? प्रमोटर कितने टाइप के होते हैं, तो स्टूडेंट बताएगा? Sir, we don't have any idea actually. Okay. So, if Actually, possible. Constitutive promoter has the fixed. मैं बोल देता हूँ. एक्चुअली तुमको नहीं पता कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर? सर फिक्स रेट में उसका एक्सप्रेशन हो. उसके अंडर कौन सा जीन होते हैं? हाउसकीपिंग एंड रेगुलेटरी. हाउसकीपिंग जीन होते हैं. हाँ. तो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर वो होता है दैट एक्सप्रेस अ जीन थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, यानी कोई भी जीन रहेगा वो हमेशा एक्सप्रेस होता रहेगा. फिर एक होता है इंड्यूसिबल प्रमोटर, जब कोई पर्टिकुलर स्ट्रेस या कोई उसको इंड्यूस का मॉलिक्यूल मिलेगा तब वो प्रमोटर काम करेगा. और एक होता है रिप्रेसर प्रमोटर. आप लोगों ने ओपेरॉन में पढ़ा होगा, इंड्यूसिबल ओपेरॉन और रिप्रेसर ओपेरॉन. तो रिप्रेसर होता है, उसमें क्या होता है, उसको फीडबैक टाइप का बोलते हैं. जब पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो उस प्रमोटर को रिप्रेस कर देगा, उसके फंक्शन को रिप्रेस कर देगा. अब हम लोगों ने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूटिव प्रमोटर यूज किया. अगर हमारा जीन लगातार बनता रहेगा तो नो डाउट एनर्जी फिक्स है किसी प्लांट में, यू नो ना, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. तो उसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि ईल्ड पेनाल्टी आएगी, यानी प्लांट को अपनी एनर्जी इस जीन पे भी वेस्ट करनी पड़ेगी. तो उसका इफेक्ट ये होगा कि यील्ड में इसकी प्रॉब्लम आएगी. सो मे बी प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी या उसकी लाइफ साइकिल पे इफेक्ट पड़ेगा. सो वी नीड अ इंड्यूसिबल प्रमोटर. तो जब सिंस वी आर वर्किंग ऑन स्ट्रेस, तो जब कभी स्ट्रेस आए तो प्रमोटर काम करे, तब वो जीन बने, हमेशा ना बनता रहे, जिससे उसको यील्ड पेनाल्टी ना हो. सो वी रिक्वायर इंड्यूसिबल प्रमोटर. उस केस में जिसका जीन है, जो जीन है, हम प्रिफर करते हैं उसी का प्रमोटर यूज करें, क्योंकि वो प्रमोटर वेल वर्स्ड विद द जीन. और हम पूरा कैस्केड यूज करेंगे प्रमोटर एंड जीन, तो IP का भी इशू नहीं रहेगा. और एज एंड व्हेन वी रिक्वायर दिस जीन, वो जीन बनेगा, लगातार वो जीन नहीं बनता रहेगा. सो इस केस में वी हैव टू नाउ आइसोलेट एंड वैलिडेट द प्रमोटर. तो प्रमोटर को आइसोलेट करने के लिए जो टेक्निक होती है दैट इज कॉल्ड जीन वॉकिंग. अब कोई मैसेज आया उसमें? नहीं, कुछ नहीं है, वो हमने डाला है. अच्छा. ऐसे ही लिंक वगैरह, so that people those who are living at least they can be touch, है ना? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. Yes. तो अब जीन वॉकिंग बहुत ही, मतलब दैट इज वेरी, वी हैव टू डिजाइन और वी हैव टू वॉक ऑन जीन वेरी इंटेलिजेंट, वेरी केयरफुली टू फाइंड आउट द प्रमोटर. तो इसको मैं, इसका तो ये भी ऐसे ही है.
सपोज दिस इज द आवर जीन, उसका हमको सीक्वेंस पता है बिकॉज वी नो द जीन, तो we isolate the total DNA, then perform the restriction digestion. Okay, after restriction digestion, जितने भी we have clone our adapter. We ligate our adapter on the 5' of every fragment. तो adapter जो है दोनों तरफ ligate हो सकता है, क्योंकि 5' इधर भी है इधर भी है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री साइड पे भी है। तो एडाप्टर दोनों तरफ लग गया। फिर जो एंड है इसके, ये एंड, वी फिल दिस एंड विद टैग डीएनए पॉलीमरेज। तो अब जितने डीएनए फ्रेगमेंट हैं सबके आगे हमारे एडाप्टर लग गए। सो अगले स्टेज में हम क्या करते हैं, हम रिवर्स प्राइमर लेते हैं जीन का अपना, और फॉरवर्ड प्राइमर लेते हैं अपने एडाप्टर से। तो जहां पर हमारा जीन है सिर्फ वही एम्पलीफाई होगा। तो जीन का अप स्ट्रीप रीजन जो है हमारा एम्पलीफाई हो जाएगा। तो इससे हम जो है फिर देन वी क्लोन एंड देन गो फॉर द सीक्वेंसिंग। ये हम तब तक करते हैं जब तक हमको जो है कंजर्व सीक्वेंस ना मिलने शुरू हो जाए। अब प्रमोटर में क्या होता है, आपका टाटा बॉक्स होता है, कैट बॉक्स होता है, डिफरेंट इंपॉर्टेंट मोटिव्स होते हैं, वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स से हम पता करते रहे कि हमको कब तक मिल रहा है। तो एक आइडियल प्रमोटर करीब CMB हमारा 780 का है, तो अराउंड हम जीन से 800 बेस पेयर, इवन सम टाइम 1000 बेस पेयर तक हम एम्पलीफाई कर लेते हैं, एंड वी प्रिडिक्ट इस 1000 बेस पेयर में ही हमारा प्रमोटर होगा। ठीक, सो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ PAPX जीन का। सो PAPX जीन के हमने सेम प्रमोटर वॉकिंग से हम लोगों ने उसको प्रमोटर को एम्पलीफाई किया, तो हमको डिफरेंट फ्रेगमेंट मिले, 1000 भी मिला, 800 भी मिला और 200 भी मिला। तो जो मेन प्रोमिनेंट फ्रेगमेंट थे हमने सबको क्लोन किया। अब प्रमोटर का फंक्शनल वैलिडेशन वी आर यूजिंग द सेम pCambia वेक्टर, पर उसमें क्या किया कि CMB जहां पर था गस के आगे, उस CMB को हमने अपने प्रमोटर से रिप्लेस कर दिया। वी हैव रिप्लेस CMB विद आवर प्रमोटर। अब जो गस है वो हमारे प्रमोटर के कंट्रोल में है, डिफरेंट फ्रेगमेंट के, और एज अ वेक्टर कंट्रोल हमने CMB की जगह लिंकर डाल दिया, एक ऐसे ही सीक्वेंस डाल दिया जो एक्सप्रेस नहीं होता। अब क्वेश्चन आएगा व्हाई वी पुट लिंकर। एक्चुअली रिव्यूअर्स और जो भी रिसर्च फैकल्टी है, स्पेशली फॉरेनर्स, वो काफी इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो उनका आर्गुमेंट होता है कि एनदर CMB प्रमोटर जो है, जो आपके मार्कर जीन के साथ है, दैट कैन आल्सो शो लीकी एक्सप्रेशन। यानी कि उनकी थ्योरी या रहती है कि ये CMB प्रमोटर माइट बी कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ UID। तो आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे, तो इसको दिखाने के लिए हम वी पुट द लिंकर। तो लिंकर लगा दिया, दैट मीन्स ऐसे भी कोई सीक्वेंस डाल दिया, और ये हमारा हो गया वेक्टर कंट्रोल। ये हमारा हो गया पॉजिटिव कंट्रोल जिसमें CMB एक्सप्रेस कर रहा है UID को। ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रमोटर्स जिसमें वी हैव रिप्लेस CMB विद आवर प्रमोटर फ्रेगमेंट्स। फिर वी हैव नाउ फर्स्ट PCR विद ट्रांसजेनिक जैसे बनता है, सो वी ट्रांसफॉर्म आर दिस टू द टोबैको प्लांट, और टोबैको प्लांट को ट्रांसफॉर्म करने के बाद वी कंफर्म दिस ट्रांसजेनिक प्लांट बाय यूजिंग गस जीन। गस जीन इसलिए यूज किया क्योंकि वो यूनिवर्सल जीन है, और वी आर नॉट यूजिंग दिस वन प्रमोटर सीक्वेंस, कि हो सकता है उसका होमोलॉगस प्रमोटर निकोसियाना टोबैको में या मॉडल प्लांट में हो, सो इट इज बेटर टू यूज UID जीन। तो UID जीन जहां जहां होगा यानी कि वो ट्रांसजेनिक हो गए, उससे हमने कर लिया। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि कॉपी नंबर। तो फॉर दिस वी परफॉर्म द सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग से पता चल गया कि हमारा जो है ट्रांसजीन के कितने इवेंट है। तो वी यूज दिस प्लांट व्हिच हैविंग द सिंगल ट्रांसजेनिक इवेंट, क्योंकि अगर मल्टीपल ट्रांसजेनिक इवेंट है तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असेस द प्लांट। तो वी हैव सिलेक्टेड द प्लांट व्हिच हैविंग सिंगल ट्रांसजीन इवेंट, selected based on the southern hybridization. फिर we see the gus expression in seedling, leaf, stem and root. कहीं भी वो एक्सप्रेस हो सकता है। तो we have performed the gus assay
of wild type vector control as well as all 4 fragment P1 to P5 and then positive control where Gus expression is not. तो we luckily found Gus expression in all cases. That means हमारा प्रमोटर जुड़ा भी है और काम भी कर रहा है, तभी Gus का एक्सप्रेशन आ रहा है. फिर we have performed the anatomical also, the root, stem and leaf की एक्सप्रेशन पेरिफेरी में भी कि अंदर भी है. So by this प्लस माइनस से भी कंफर्म कि हमारा एक्सप्रेशन गस का कहाँ कहाँ हो रहा है. ओके, बेस्ड ऑन सीक्वेंसिंग एंड बेस्ड ऑन डिफरेंट एसे साइड बाय साइड वी आल्सो परफॉर्म हिस्टोकेमिकल गस एसे दैट इज क्वालिटेटिव, यानी विजुअल इफेक्ट होता है. तो टू स्टडी द क्वांटिटेटिव वी परफॉर्म द मग एसे, एक मग एसे होता है. सो वी क्वांटिफाई द गस एक्सप्रेशन. तो बाय यूजिंग मग एसे हमने गस की एक्टिविटी देखी. तो आप इसमें देखोगे वेक्टर कंट्रोल वाइल्ड टाइप में मग ऐसे नहीं आया आप, और ये हमारे 4 फ्रेगमेंट थे PP1 टू PP5, और इसमें ये डिफरेंट मोटिव्स हम मैंने दिखा रखा है, जैसे मिक बाइंडिंग साइड, जिप बाइंडिंग साइड, मिक साइड, और इसमें TSS भी है, इसमें कैट एंड टाटा बॉक्स है, वो मैंने शो नहीं किया, दैट इज वेरी कॉमन. फिर हमने क्या देखा कि जो सबसे बड़ा फ्रेगमेंट था दैट इज शोइंग मैक्सिमम गस लाइक का पॉजिटिव कंट्रोल. फिर जो सेकंड फ्रेगमेंट लिया उसमें गस का एक्सप्रेशन कम हुआ लेकिन ठीक ठाक है. लेकिन जब हम PP3 में गए तो गस का एक्सप्रेशन गिर गया. फर्दर फ्रेगमेंट में गए जो और छोटे फ्रेगमेंट में गए तो गस ऐसे थोड़ा बढ़ा, लेकिन जब 5वें फ्रेगमेंट में आए तो गस का एक्सप्रेशन फिर बढ़ गया. सो नाउ हाउ वी इंटरप्रेट दिस रिजल्ट. तो इसको हमने ऐसे इंटरप्रेट किया कि जब हम माइट बी देयर इज सम इनहांसर साइट, आपको पता होगा प्रमोटर पे इनहांसर और रिप्रेसर दोनों साइट होते हैं, तो कुछ इनहांसर साइट थी प्रमोटर पे. जब हम PP2 से PP3 की ओर गए तो इनहांसर साइट जो है कट गई, इसीलिए एक्सप्रेशन गिर गया. तो PP3 से PP2 के बीच में कोई इनहांसर साइट होगी, और जब PP3 से PP5 की ओर जब गए, कायदे से जब प्रमोटर कम कर रहे थे एक्सप्रेशन कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक्सप्रेशन बढ़ गया. इसका मतलब यह है कि कोई निगेटिव यानी कोई रिप्रेसर साइट थी जो कट गई, जिसके कारण गस का एक्सप्रेशन बढ़ गया. तो अगला क्वेश्चन आता है कि इनहांसर साइट क्या है और रिप्रेसर साइट क्या है. इसके लिए हमने फिर डिफरेंट फ्रेगमेंट बनाए. PP2 और PP3 के बीच में हमने करीब 40 से 60 बेस पेयर के डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बनाए और एक्सप्रेशन देखा कि कहां पर हमारा एक्सप्रेशन बढ़ता है. तो ये देखो DF2 और PP3 के बीच में हमारा एक्सप्रेशन कम हुआ. तो हमको जो 800 से 700 का था ये हमको नैरो डाउन कर लिया 720 से 697 के बीच में, वो हमारा इनहांसर साइट है. इसीलिए DF3 मतलब PP3 से PP4 इसके बीच में भी हम लोगों ने डिफरेंट डिलीशन फ्रेगमेंट बनाए. तो हमने देखा DF3 और D4 के बीच में एक्सप्रेशन बढ़ा, यानी कि इसको हमने नैरो डाउन कर लिया 659 से 598 के बीच में कोई एक साइट है जो रिप्रेसर साइट है. तो हम नैरो डाउन हो गए करीब 60-70 बेस पेयर के बीच में, कि 60-70 बेस पेयर के बीच में ही जो कुछ है वो एक्टिविटी हो रही है. सो नेक्स्ट हमने क्या किया, ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट बनाए. 60 था तो R1 डिजाइन किया, दूसरा हमने R1 से R2 डिजाइन किया जो 30 बेस पेयर को ओवरलैप कर रहा है. और फिर वी परफॉर्म द IMSA एक्सपेरिमेंट. IMSA में क्या है, न्यूक्लियर एक्सट्रैक्ट लिया, उसके साथ डिग लेवल अपना प्रोब लिया और कंपटीटर लिया. तो अब प्रमोटर पे प्रोटीन बाइंड करेगा. अगर प्रमोटर पे प्रोटीन बाइंड नहीं कर रहा है, प्रमोटर पे अगर प्रोटीन बाइंड कर गया तो वो साइज उसकी बढ़ जाएगी, तो वो स्लो उसका मोबिलिटी स्लो हो जाएगी. दैट मीन्स उसका बैंड ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा. तो भी हमको यहां पर मिला R1 में. अब R1 में मिला, R2 में नहीं मिला, यानी कि जो ओवरलैप था, यानी इस रीजन में कहीं हमारे पास जो है कोर सीक्वेंस है. तो अगले स्टेप पे हमने क्या किया, सिंगल बेस म्यूटेशन स्टार्ट किया. करीब 13 बेस पेयर बनता है ये. हर एक बेस को हमने म्यूटेंट किया और प्रोब बनाए. तो 13 बेस थे, तो हर एक बेस को म्यूटेंट किया और IMSA परफॉर्म किया. जब देखा कि हमने म्यूटेशन CCTCAA में किया म्यूटेशन, तो वो बाइंडिंग नहीं हुई. इसका मतलब ये कोर सीक्वेंस है. ये सीक्वेंस होगा तभी प्रमोटर काम करेगा और उस पर प्रोटीन की बाइंडिंग होगी. सो बाय दिस
we found the core sequence of our repressor motif. सेम एक्सपेरिमेंट हमने इनहांसर के लिए भी किया, सिंगल बेस का म्यूटेशन किया, करीब 22 प्रोब बनाए और फिर इससे हमको कोर सीक्वेंस पता चल गया। इसका कोर सीक्वेंस ये रेड में है, ये मिला, और रिप्रेसर का कोर सीक्वेंस हमको ये मिला। तो हमको कोर सीक्वेंस मिल गया। यू नो ना, जैसे टाटा बॉक्स है, टाटा कोर सीक्वेंस है, TA कैट बॉक्स है, तो एक कोर सीक्वेंस है, मोटिफ अलग है, कोर सीक्वेंस अलग है। मोटिफ बड़ा होता है, कोर सीक्वेंस छोटा होता है। कोर सीक्वेंस इज एसेंशियल फॉर द बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो उसके बेस पे हमने जो है मॉडल प्रपोज किया, दैट इज पब्लिश्ड एंड वेल एक्सेप्टेड। सो दैट इज PAPX का ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन दिखाया कि ये हमारा प्रमोटर है, मिनिमम 838 प्रमोटर का। इस पर जो है 719 से 698 के बीच में इनहांसर मोटिफ है, यहां मैं मोटिफ बोल रहा हूं। इसका कोर सीक्वेंस ये है ATAA। इसी तरीके से 659 और 644 के बीच में रिप्रेसर साइट है, इसका कोर सीक्वेंस ये है। तो नॉर्मल कंडीशन क्या होता है, इनहांसर साइट पे बाइंड करता है और रिप्रेसर को बाइंड करने से रोकता है, इसीलिए जो है गस का एक्सप्रेशन हो रहा था। हम इसको कट करते गए, जैसे इनहांसर कट हुआ रिप्रेसर साइट ओपन हो गई, हमारा जो है रिप्रेसर जाके इस पर बाइंड कर गया और हमारा जो है एक्सप्रेशन रुक गया। आगे हम और डिलीट करते गए, आपको याद होगा ना, P1 से P2, P2 से P3 डिलीट करते जा रहे थे, एक्सप्रेशन चेंज हो रहा था। जब हमने जो है इस और साइड कट किया तो रिप्रेसर साइड भी कट गई। जैसे रिप्रेसर साइड कटी, प्रमोटर फिर काम करना शुरू कर दिया और mRNA का एक्सप्रेशन शुरू हो गया। अब इस तरह से हमको जो है कोर सीक्वेंस, इनहांसर और रिप्रेसर मिल गए, बट वी डिडंट गेट द इंडिसिबल सीक्वेंस। तो हमने क्या किया, डिफरेंट फ्रेगमेंट लिए, रिप्रेसर और इनहांसर, ये जो है सारे P4 तक थे। तो P5, P6, P7 इसके हमने डिफरेंट फ्रेगमेंट बनाए। इसको साल्ट, ड्रॉट और हीट तीनों स्ट्रेस में हमने एक्सप्रेशन देखा। सर और कितने स्लाइड्स है? बस खत्म होने वाला है। ठीक है सर। 7 बजे का टाइम था ना, 15 मिनट लेट स्टार्ट हुआ था, 1 घंटे भी खत्म हो जाएगा। हाँ, यस सर। हाँ, 15 मिनट लेट स्टार्ट था, 7:15 हो जाएगा। तो इससे जो है हम we find out the indicible sequence। तो हम डिलीट करते गए तो we found 185 then 114, इस पे हमको indicible transcription factors मिले। So we can use 114 base pair of a PAPX promoter as a indicible promoter for the expression of our gene। तो हमको प्रमोटर मिल गया और हमको जो है अपना जीन मिल गया। ये माइट बी यू नो गोपाल विवेकानंद तिवारी। हाँ सर। ये उसी का काम है, विवेकानंद का। कहाँ है अभी वो? विवेकानंद ने अपनी कंपनी शायद खोली है इजराइल में आकर के, इंडिया में। हाँ, बेंगलोर में है। बहुत अच्छा है, तो करना ही चाहिए। वो भी ट्रांसजेनिक पे ही काम कर रहा है, क्रिस्पर कैस पे। बहुत ये वेक्टर मंगाया था, तो ठीक है। दैट इज कमिंग टू द आवर स्लाइड। तो बाय दिस वी फाउंड आउट द इंडिसिबल प्रमोटर एज वेल एज आवर जीन। तो अब हमारे पास जो है सेम, बाय यूजिंग द सेम टेक्निक वी आल्सो कैरेक्टराइज द GSTU प्रमोटर। हमें उसका डिटेल नहीं बता रहा, उसमें भी हमको इसे डिफरेंट फ्रेगमेंट किया और हमने जो है उसका ट्रांसक्रिप्शन। अब वी हैव नाउ आवर तो by using that promoter and that gene we transfer our gene to the groundnut and then we perform the tissue culture, then hardening, then flowering and go and side by side also study their dot and salinity tolerance. So currently we having the groundnut transgenic with PAPX gene promoter and ASR gene promoter at T2 generation, और सारे सीड हम लोगों ने कलेक्ट करके अभी रखा हुआ है। एंड दैट ट्रांसजेनिक प्लांट शोइंग सॉल्ट टॉलरेंस अप टू 150 मिलीमोलर NaCl और आल्सो शोइंग 15 days ड्रॉट कंडीशन।
So we are now waiting for the government approval for the field trials. So we develop our transgenic groundnut by using our own promoter and our own gene. आगे मेरा फ्यूचर का प्लान है कि बाय यूजिंग क्रिस्पर कैस वी कैन नॉक आउट सम नेगेटिव रेगुलेटर जीन्स एंड डेवलप ट्रांसजेनिक. एंड आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी भी हमारे एक्सपेरिमेंट में एक प्रॉब्लम है कि वी आर यूजिंग एसपीटी जीन, क्योंकि उसके बिना हम मार्क नहीं कर सकते. सो वी ट्राई टू डेवलप मार्कर फ्री सॉल्ट ट्रांसजेनिक. दैट इज आई प्रपोज बट स्टिल वेटिंग फॉर गवर्नमेंट अप्रूवल. दिस इज माय लैब. So based on this, I received some recognition from government. And finally, I would like to thank my research scholar student and also Professor Bhavna Jha. At that time, he was the head of department and give me full liberty to work. For that, I am thankful to him. Then definitely our funding agency, DST, DVT and CSMCI also thanks.